Jai Shri Krishna, everyone. Kshama Chata, I'm trying to manage this, the Zoom technology such that आप लोगों को distraction कम हो. I thought I had muted everyone, but I think everyone is able to unmute themselves. Next time I'll figure out a better solution. So क्षमा करें. आज का 8वां अध्याय प्रारंभ होगा. याद रहे, about a month ago we started weekly गीता योग. शनिवार को भी होते हैं, रविवार को भी होते हैं. रविवार के दिन इंडिया गीता योग गीता reflection in India in Marathi. We began there as well. On Saturdays we have 2 Gita Yogas. I just finished one session earlier today, which was the 3rd chapter, Karma Yoga. और ये दूसरा है, which is आज 8वां अध्याय होगा. ये भी है कि because इतने सारे हर हफ्ते हो रहे, तो we have agreed that we will mix things up a little bit. मन की प्रवृत्ति होती है, variety पसंद होती है, and I have a selfish ulterior motive in it. We will bring in Yoga Vasishtha Maharamayana like we did last time. Next time perhaps Ramcharitmanas of Tulsidas ji, और फिर श्रीमद् भागवत, उद्धव गीता, Ashtavakra Samhita, Brahma Samhita, all these different scriptures for 2 reasons. One is to keep you engaged. And I'm very interested in keeping my customer base. I don't want my market share to fade, because I really care about my customers. I deeply care about my everyone's well-being. Or because of the limited, I am not a very resourceful person. I have nothing else to offer. I have nothing else to give other than this gift of the name of God, frankly, and the experience that has been gifted to me. So that's one. And then the second, the bigger, the real ulterior motive, इसके पीछे स्वार्थ मेरा ऐसा है, अलग अलग शास्त्र लाने के पीछे, कि ये सिद्ध करके दिखाया कि भगवद गीता में जो इतने succinctly, इतने संक्षिप्त में, इतने shortly with clarity जो बात कही है भगवान ने, वो इतने सैकड़ों हजारों पन्ने पढ़ने के बाद वही बात बेस्ट पॉसिबल मैनर में बताई हुए. For years and years now, more than a decade, I have been saying that there is no more efficient scripture than the Bhagavad Gita. And I think at the end of these sessions, these reflections, you will see that this is true after hearing from Yoga Vasishtha and all of the others as well. So इस उद्देश्य से what we do is every other session, so आज भगवद गीता, पिछले बार योग वशिष्ठ था, उसके पहले भगवद गीता थी, फिर आज गीता है, फिर अगले बार दूसरा कोई. So every other will be Gita, and then the alternate will be different scriptures. So the other thing I should remind you, because there are some new participants today, we don't have any rules in these reflections. Reflection इसलिए कहा कि जब तुम आईने के दर्पण के सामने जाते हो, तो दर्पण का अपना कुछ हक नहीं होता, दर्पण की अपनी कोई जिद नहीं होती, यहाँ तक कि दर्पण की अपनी अकल भी नहीं होती है ना. The mirror does not have its own necessarily understanding other than its natural quality to reflect as much as possible, right? The clearer the mirror is, the clearer the reflection, the polished the mirror is, the better the image that you see. But the image is yours. The mirror is not providing anything of its own. The mirror is incapable. मिरर की अपनी औकात नहीं, अपनी हैसियत नहीं, अपनी अकल नहीं, अपने पास कोई संपत्ति नहीं, दर्पण के पास अपना कुछ माल दे. तो उसका जितना वो स्वयं जितना अपना मैल दूर करे, उतना उसको भी साफ सफाई. Imagine if I am the mirror and I am covered with dust, और आप मेरे सामने आ जाओ, तो मैं आपको ठीक से देख ना पाऊँ, क्योंकि मैं खुद ही मैल से लथपथ हूँ, और आप भी अपने आप को खुद न देख पाए, है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. जितना मेरा मैल कम होता जाए, उतना मैं एज अ मिरर एम एबल टू सी यू क्लियरली, बिकॉज मेरे आंखों पर जो मैल था. सो आई कमिट टू यू दैट आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दैट, एंड द बेनिफिट ऑफ दैट यू हैव टू रियलाइज दैट व्हाट यू सी थ्रू दिस इज योर ओन फॉर्म. माई इंटेंशन इन दीज सेशंस इज दिस ओनली, दैट यू सी योरसेल्फ, the beauty that you have, the grandeur, the opulence, the gift that you are, God's design that you are, the splendor that you bring. Because I, from this side, as the mirror, am able to see आपका सौंदर्य, आपकी महत्ता,
आपका वैभव मैं तो देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं बुद्ध हूँ, मेरे अपनी अकल नहीं, अपनी वाचा तक नहीं है। पत्थर की नहीं हो, मिरर इज अ रॉक, राइट, एज अ ग्लास इज अ स्टोन, एज अ फॉर्म ऑफ स्टोन, जस्ट अ पॉलिश्ड वन विथ सम, पीछे से किसी ने कुछ लगा दिया, जैसे मेरे पीछे मेरे साक्षी गोपाल ने कुछ चिकना चुपड़ा लगा दिया उसकी वजह से। लेकिन मेरे बाप, ये रिफ्लेक्शन तो तुम्हारा है जो दिखाई दे रहा है वो तो तुम ही हो। So pay attention to that. That is the only intention, hoping to impress upon your mind that you have everything that it takes, that you should go back and read the Gita and process it yourself also. So इस विचार के साथ याद दिलाए, आज की जमदग्नि जयंती है। जमदग्नि was one of the avatars, भगवान के जमदग्नि वत्स परशुराम, सॉरी आई मेंट परशुराम जयंती है। परशुराम अवतार हुए। परशुराम वॉज द सन ऑफ जमदग्नि। मैंने इसलिए कहा जमदग्नि वॉज अवतार क्योंकि हमारा गोत्र जमदग्नि वत्स है ना। हर एक का अपना गोत्र होता है और कुल होता है ना। गोत्र है जो पहला सप्तऋषियों में से, जहाँ से चले हम सब ऋषियों के वंशज है ना। मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म तेरा वंश है। ये कैसे भूल गया मेरे बाप कि तू ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म से निकला है, ब्रह्म से जुड़ा है। माई रे ऑफ लाइट, हाउ डिड यू फॉरगेट दैट यू ओरिजिनेटेड इन द सन? जस्ट 8 minutes ago you were the sun and you still are connected. You the photon that has all the prowess and the power to shine light on anything you fall, wherever you fall, that comes to light. You are that. So मानव तुझे याद नहीं क्या, तू ब्रह्म का अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है। तो ये याद दिलाने वाले वचन है संतों के कि इसमें अपने आप पर को कोसे नहीं। गलती अगर हुई, अपने आप से भूल हो गई, समय बर्बाद हो गया, तो there is no time to regret and repent. The time is to just turn the switch on and say, yeah, that's right, I leave that behind. Today is a new day. आज अवतार का दिन है। अवतार हमें याद दिलाता है, परशुराम का अवतार। जमदग्नि वत्स कहते हैं। वत्स इज बच्चा, बेटा, पुत्र। जमदग्नि वत्स इज परशुराम, उनका अवतार हुआ था। भगवान के जितने भी अवतार हुए थे मानव रूप में, वो ज़्यादातर क्षत्रिय कुल में हुए थे। राम का अवतार क्षत्रिय में हुआ, दशरथनंदन कृष्ण का अवतार। ये जमदग्नि अवतार ब्राह्मण कुल में हुआ था। जमदग्नि नाम के ऋषि थे, उनके कुल में जन्मे थे जमदग्नि वत्स। और ये पहले बड़े शांत ब्राह्मण थे, और वो फिर एकदम क्रोधी, उनका अवतार क्रोध अवतार, आवेश अवतार कहते हैं। एनर्जेटिक अवतार, आवेश में आ गए। इम्पल्सिव अवतार। 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया था, है ना, गुस्से में आकर के। द मिसक्रिएंट्स, द रॉन्ग डूअर्स, इट जस्ट क्लेंस्ड द प्लैनेट, गेटिंग रेड। जैसे अभी ये वायरस क्लेंजिंग कर रहा है ब्रूटली, रिगार्डलेस ऑफ कौन है कैसा है, बस सबको सर्वनाश अगर रास्ते में आए तो। ऐसे ही जमदग्नि वत्स जो परशुराम थे, उनके चरित्र अगर सुने तो ऐसा समय आया उनके चरित्र में, उनके अवतार में, कि फिर वो ही रियली गॉट फेरोशियस अबाउट इट। तो एनीवे, उनकी याद करके, बिकॉज आई ओरिजिनेट फ्रॉम दैट द सोर्स। सप्तऋषियों में से उनके पिता जमदग्नि ऋषि थे। So I thought it is appropriate to pay obeisance to उनको प्रणाम करके आज का प्रारंभ करते हैं। 8वां अध्याय आज का, अक्षर ब्रह्म योग। मैं हमेशा कहता हूँ अक्षरों में बड़ा महत्व होता है, अक्षरों में ही रहस्य होता है। आई मे हैव शेयर दिस विथ यू दैट व्हेन आई वाज टीचिंग माय सन, वो कुमान करते थे, मैथ गणित पढ़ाते थे बचपन में, तो उसको जब चैलेंज होता था तो आई यूज्ड टू से, आई थिंक आई हैव सेड दिस बिफोर बट आई विल रिमाइंड यू अगेन बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट, कि जस्ट स्टेयर एट द प्रॉब्लम and I guarantee you, Kana, that you will find the answer to it. If you never mind if you don't follow math, that is not the point. If you stare at it, अपने आप तेरे को उत्तर समझने लग जाएगा. Obviously, he did not believe it in the beginning, but obviously he came back and said, "Oh my God, what a miracle! This is so true." वो कहने लग गया कि जब मैं देखने लग जाता हूँ प्रश्न के, और आइंस्टाइन ने क्या कहा था? If I had 1 hour to solve the world, to save the world, solve the world's problem. These are his words. If I had 1 hour to save the world, I would spend 50 minutes on understanding the question, the problem, the challenge. And that's where he left his statement, which means then of course the solution will be there. If I can concentrate,
I can properly follow, if I can really go to the depth of the word, उसको आकलन करके उसको उद्गुत्ति को छुड़ा अगर सके, है ना, ये जो चित जड़ ग्रंथि बन गई है, मैंने ये भी कहा था पहले, ये तो अक्षर ब्रह्म योग जो 8वां अध्याय, it is arguably one of the most, if it is the most arguably technical, इसमें बड़े technicalities है. The 7th chapter left us with those confounding technicalities, if you remember. जो ज्ञान विज्ञान योग था 7वां अध्याय, उसमें अधिभूतम अधिदैवम प्रयाण काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मेरा विचार करके जो छोड़ दिया जाता है, 8वें अध्याय में आएगा अभी, ओ अधिदैव अधिभूत लाइक यू गेट लास्ट लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है, ऑल दिस यू सडनली प्रेसिपिटसली स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड अबाउट इट, बिकॉज ये बड़ा टेक्निकल है. लेकिन इसमें डरने की बात में, गीता में कहीं डरने का तो प्रश्न है ही नहीं, आश्वासन है, उल्टा है. गीता में तो आश्वासित होने का आश्वासन बिल्कुल है, guaranteed है. So paying attention to the words in it, looking closely at it, इसमें बिल्कुल पता चल गया. And then we will have wonderful experiences in it. Some of my favorite shlokas appear here, number 7 and 8 for example. Tasmat sarveshu kaleshu mam anusmara yudhyacha मय्यर्पत मनो बुद्धिर माम एवश्य अsanchayam. भगवान कहते इसलिए, there are some saints who have upheld this श्लोक that I just said, 7वां श्लोक है 8वें अध्याय में. तस्मात्, उन्होंने कहा कि this is the sar of Gita. If they had to pick one श्लोक that would say 700 श्लोक के किसको समय, 700 श्लोक पढ़े, समझे, याद करे, उसका मंथन करे विचारों का, एक श्लोक दे दो यार, है ना. जैसे माचिस में एक अगर लकड़ी भी हो माचिस में, तो उससे भी आग जला सकते हैं अगर माचिस ठीक हो. ऑल यू नीड इज वन टू लाइट द फायर. एंड सो अपनी चेतना को चेतने के लिए हम किस प्रकार जीवन जिए, याद हो. टुडे आई एम गोइंग टू टेक लिबर्टीज एंड गो ऑल ओवर द प्लेस, बिकॉज दिस इज माई अपॉर्चुनिटी. व्हेन वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, आई टेक लिबर्टीज टू go backward, go forward, all of that, you know. So one stick is enough to light the fire. उसी प्रकार एक श्लोक दे दो. ये गीता में इतने सारे योग है, करूँ क्या मैं, what should I do with it, what does the Gita tell me to do? And some very very prominent, some of the brightest bulbs in the spiritual realm have said this shlok number 7 in the 8th chapter, जो अभी मैंने कहा फिर से कहता हूँ, तस्मात्, therefore, that means sarveshu kaleshu, at all times, every moment, mam anusmara yudhyacha. Even if I do these 2 shloks today and we talk about those, the mission will be accomplished. And so I'm going to stay anchored on those for a bit. Tasmat sarveshu kaleshu mam. Sarveshu is at all, kaleshu is times, mam, mujhe, mera, God is saying, anusmara, remembering me in the backdrop. These are very subtle, very nuanced, very refined words. He's not saying खाली मेरा भजन कर, खाली मेरा चिंतन कर, खाली मेरी याद कर, खाली मेरा नाम ले, ऐसा नहीं. अनुस्मर क्या है? This is an intelligent use of words. स्मरण नहीं क्या, अनुस्मर क्या, and I'll shed light on that. What the point also that I'm trying to make is it behooves us to pay very close attention to the words and be smart about it. मयि अर्पित मनो बुद्धिर, मेरे को अपनी बुद्धि और मन, मयि, to me, अर्पित, aligning with, surrendering to, or best way to describe is aligning with your intellect and your mind, your emotions, all your emotions and your intellect. मन और बुद्धि का क्या काम होता है? Emotions and the intellect, aligning, bringing them together, and again aligning those with me, whatever he is trying to do, right? भगवान जो भी करना चाहते हैं. माम अनुस्मर युद्धच तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यसि असंशयम. There will be no doubt then that you will have entered into my being. Your being will be one with my being. Yeah. So that was number 7. And then उसके बाद वाला श्लोक भी महत्वपूर्ण. अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना paramam purusham divyam yanti partha anuchintayan. So before we go to that, I'm going to stay on the 7th shloka a little bit. So tasmat, therefore, sarveshu, at all time.
And so we should examine, do I do that at all times? If I want the benefit, Gita ka benefit is Manav Jivan ka benefit, how often, how frequently am I able to practice this? Do I even believe this the whole time? Mam Anusmara. So जैसा पर्दे पे हो पीछे में मेरे बैक मेरे खोपड़ी के पीछे, we say that I remember that at the background. I'm always, जब हम काम करते रहते हैं, ऑफिस में काम करते रहते हैं, तो सर्जरी करते हो, तो हम लोग बैकड्रॉप में अपने घर को नहीं भुला देते, है ना, अपने परिवार वालों को नहीं भुला देते. ये ना हो कि वो ग्रोसरी स्टोर में भी जाकर के खाली उसी का चित्र सामने है. But we don't forget. When I am going through the grocery aisles, I might remember what Mohini likes or what Kana likes, and thus they are at the back of my mind. I am never without at the back of my mind those that I care about or that which matters to me. You know? And the more prominent they are, and the more prominent that is, the more I'm constantly carrying that vision at the back of my mind with me. That ये उसका अर्थ ये नहीं होता कि फिर मैं अपना कर्म ही नहीं करूँ, अटक जाओ. Never means that I'm just not doing anything there, because all I'm doing is remembering that person. It means that I am integrating the two. I am bringing, always carrying with me that which matters to me the most, the person who matters to me the most, the people who matter to me the most. And my family members, for example, my friends, or my company, my colleagues, my friends, whatever, whoever, right? But I'm also executing on the task at hand. So tasmat sarveshu kalesh mam anusmar, मेरा अनुस्मरण भी कर और युद्ध भी कर. ऐसा न कर कि खाली मेरा स्मरण कर रहा है और युद्ध को छोड़ दिया. ये न कहे कि all right Krishna, I got it, you told me to just remember you, so here I go, I'm running away, वन में भाग गए, तेरा स्मरण करते बैठ रहा है, गोपाल गोपाल गोविंद गोविंद करते, युद्ध विद्ध तू करते बैठना है. ऐसे नहीं. और ऐसा भी नहीं कि बस युद्ध करने को कहा तो खाली धुआंधार युद्ध कर रहा है बस, और मेन पर्पस को भुला ही दिया. दोनों को इंटीग्रेट. सो द सक्सेस ऑफ लाइफ, द रियल योग, द गीता योग, आई माइट से, इज इन द परफेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ द टू, द वीविंग टुगेदर. Right now it is a mess that has been woven together in us, which is why we're confused. मैंने एक बार बात कही थी चित जड़ ग्रंथि की, है ना. चेतना, चैतन्य जड़ के साथ, the spirit is entangled with the matter. इतना फंस गया है कि there is no way to separate which one is chaitanya, which one is chetan, which one is just the life force, which one is just the light, and which one is the object which is being lighted by the light, the dead matter. है ना. ये जो प्रकाश का किरण पड़ गया कीचड़ के गोले पर, a ball of mud, that becomes visible because the light has fallen onto it. So it is mixed. There is light on it, and there is also mud in it. Mud was always mud, and mud will always remember mud. Always dead matter. अपनी चेतना नहीं है उसमें, वो स्वयं प्रकाशित नहीं है. Mud is incapable of lighting itself so that it will be seen. Light has nothing to do with object. प्रकाश का स्वभाव है, जहाँ भी जाए, जब भी जाए, जिस पर भी पड़े, जैसा भी, अच्छा हो बुरा हो, कीचड़ हो या सोना हो, ना, संत हो या गुंडा हो, जिस पर भी पड़े उसको चमकाए, प्रकाशित करे. ऐसे ही जीवन चैतन्य जो है हम में, हम जो है स्वभाव, जो सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, उसको जीवित करे, जीवंत करे. जो भावनाएं थी तो हमने अपने आप को वो ग्रंथि समझ, सुलझा ही नहीं, उलझ गए. We got confused between the two about who am I. And so the whole task, the entire spiritual journey, सारी साधना मात्र इसके लिए कि उसको unentangle करे, disentangle करे. All right, here is the चेतना and here is the जड़. ये दोनों की गांठ पड़ गई थी, ग्रंथि. इनमें से I will live the rest of my life still as the knot, the messed up knot but I will never forget that in this knot I am the Chaitanya. And this jhola jo main carry kar raha hu, the body that I'm carrying, is that the dead matter that I brought to light. So I am not the ball of mud. I am the light that is lighting the ball of mud. Therefore I am not dirty. I am not bad. I am not ugly. I am not stupid. I am not dumb. I'm not poor. I'm nothing negative. I'm
everything positive. But guess what? Neither is anyone else around me. No one is just a ball of mud or dirty or any of that. Everyone around me, it's just that they don't know it. They don't understand it. They don't believe it. They haven't figured it out yet, but everyone is akin to me, of my own nature, of me, in me, with me. चैतन्य मात्र, प्रकाश मात्र. उस दृष्टि से फिर सब और जिधर देखे जैसे देखे मात्र चैतन्य का दर्शन, मात्र अच्छाई का दर्शन. Only positivity, only goodness, only chastity, पावित्र मांगल्य, only purity, only प्रेम, प्रेम ही प्रेम. और फिर असंभव है वो दिल इसके बाद कभी किसी दिल को ठेच पहुंचाए. What do I fear? I fear that I might hurt a beating heart. Annadatta, that is my greatest fear. I kid you not. I swear to God. My greatest fear and my only fear. I have a fear that I might hurt someday inadvertently a beating heart. Oh ho, कैसा अनर्थ हो जाएगा. जिस पलड़े में तुले मोहब्बत, है ना. उस मंदिर मस्जिद टूटे तो कोई मुसीबत नहीं, लेकिन उस दिल को न तोड़े, न टूटे जिसमें खुद दिल भर बसा है. So every moment is lived for love when you have the realization of the truth. There is no negative moment. And it is worth, मैं इतना जान बाजी लगा के कह रहा हूँ क्योंकि this is very, very worthy of pursuit. In fact, this is the only object worthy of pursuit if it can be objectized. And everyone can have it. I say three things about it. That this is what is worth pursuing. And this is the only thing that's worth pursuing. And the biggest deal is everyone can have it. That is the biggest deal. ऐसी कोई इसमें कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई शर्त नहीं है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है. बिल्कुल बात सही ठीक नहीं है कि परीक्षा लेते भगवान, परीक्षा लेकर के फिर जो उत्तीर्ण हो जाए. अरे उस भगवान को कौन गिने, उसकी लिए जगह नहीं है प्रेमी हृदय में. परीक्षा लेकर के करेगा तो क्या किया. ये तो मास्टर कहे, आचार्य कहे, जो भी, लेकिन भगवान नहीं कहे, है ना. तो everyone can have it, everyone must have it. Nothing, do not sell yourself for cheap. ये टुकड़े इकट्ठा करके मर न जाए चांदी के. ये जिसमें मोहब्बत तोली है, इस तराजू में चांदी न तोले भैया. That is selling your soul very cheap. That is shortchanging ourselves. This is not what we were born for. बहुत हो गया. ये तो भी गंभीर होने का समय है, भीतर की यात्रा करने का समय है. पर्याप्त है, जितना आवश्यक है उतना बिल्कुल है. मैंने कहा ना, मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग. मैंने तो खाली सुना है, संत ने कहा. और जिंदा नर चिंता करे ताकि बढ़े अभाग. ये क्या, किसके पीछे पड़े. So before we get into this, the reason I'm pouring my heart out is before we take a technical turn in this, अक्षर की ओर ध्यान जब तक दे, उसके पहले थोड़ा सा रिवाइजिंग, रिफ्रेशिंग the journey that we have taken until now. Satve is the Gainesville, Virginia team is the farthest in it, and I'm reminding them about where you have been before. Do not forget all the glory and the might of the Gita, that the wealth that you have already amassed, the security that you already have, उसे भुलाए नहीं. Remember, so पहला अध्याय चला था विषाद योग से. उससे पहले हमने भिन्न भिन्न पुराणों की यात्रा करी थी. You guys, if you remember, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, नारद पुराण, इनमें से चुन के आपके सामने रखे गए थे कि अलग अलग अवतारों ने, लोगों ने, महापुरुषों ने, what has Einstein to say, what has Emerson to say, what has Henry David Thoreau to say, right, about the Gita itself, or Gitakar, to try to attract you to it. Some of you came back the next time. So then we started into the first chapter, Arjun Vishad Yoga. Vishad was Dukha, Pida. Remember Shabda, Vish At, Sa Vishad. जिसके अंदर आत विष भरा है, एंग्जाइटी का, नेगेटिविटी का, ग्रीफ स्ट्रिकन है. विष से अच्छा नहीं होता, बुरा ही होता है ना. जो अंदर में विष भरा हो तो अच्छा कैसे हो. दुख ही दुख हो. लेकिन उसको भी सही जगह पे अगर ले गए
ईश्वर के प्रभु के चरणों में अपने डिवाइसेस को म्यूट रखे. ओके, थैंक यू. सो जिसके जो विष भरा, अगर विष को भी सही जगह पे ले जाए, एंटीडोट जहाँ से मिल पाए. अंदर के विष का एक ही एंटीडोट है, बिकॉज दिस इज इमोशनल विष. रिमेंबर, दिस इज नॉट फिजिकल विष. सो इमोशनल विष का, अज्ञान का विष का एंटीडोट काली ज्ञानी के पास मिलेगा. जो विष है उसके अनुसार उसका एंटीडोट होगा. जो पॉइजन है उसके अनुसार. अब दिस इज ए सटल, इफ दिस इज ए सब्जेक्टिव विष, तो उस ज्ञानी के अज्ञान का विष हो तो ज्ञानी के पास जाना होगा, तो वो गया उसके पास. Then we went to second chapter, Sankhya Yoga, which literally translated into the analytical way of understanding the truth, right? Uniting, broadening our vision, being able to get a 360-degree view, the broadest possible spectrum of life. Right now, what is the problem? और अपना aperture जो है लेंस का, जिस कैमरा, ये दो जो कैमरे दिए भगवान ने, जिस आंखों से देख रहे, दो उसमें वो pupils में aperture, they are very narrow, है ना. वो तो खैर नैरो, लेकिन अंदर के जो तो उससे भी नैरो. इतने अपने आप को इतना ही समझ ले, इतना ही देख पाते हैं. इन ट्रूथ वो एनलाइटनमेंट जब होगा, साक्षात्कार जब होगा, परमात्मा का अनुभव जब होगा, अन्यथा इतना को प्रेम जब होगा, सिंप्लीफाइड, तब जब ब्रॉडेस्ट पॉसिबल विजन होगा, सब अपने लगेंगे. उदार चरिता नार्तुम वसुधैव कुटुंबकम. उदार चित्त होगा, बड़ा विशाल मन होगा. उसमें क्या दिखेगा? वसुधा में जो भी है, वसुधा मतलब कौन? पृथ्वी. वसुदेव ने जो धर के रखी, ऊपर धारण करके रखी वराह अवतार में, वो वसुधा, उस मात्र कुटुंब है. सब मेरे ही है, मेरा नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं, हो सकता ही नहीं. तो उसको एनालिटिकली समझने की जो दृष्टि दी थी, किस प्रकार तू आत्मा मात्र है, ये भीष्म द्रोण, ये कोई मरते नहीं है, तेरे को जो लग रहा है मर रहा है वो तो भूल कर रहा है. ये सब अन्य वर्णन हुआ तो दूसरा अध्याय था. Just to summarize it, right? And the most brilliant part of the second chapter was the end of it. It was the grand finale of the second chapter. It's just one, एक तोफ गले के बाद दूसरा तोफ गला. कहाँ, कौन सा? स्थित प्रज्ञा की जब डिस्क्रिप्शन कर रहे थे. The one established in enlightenment. The one who will be fooled no more. है ना? तस्य कार्यम न विद्यते. उसके लिए फिर ये तीसरा अध्याय जो हम पहले कर रहे हैं, I told you I'm going to go all over. तीसरा अध्याय अभी चल रहा है, अभी वहाँ पहुँचे नहीं, लेकिन इसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक है. नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेन न कश्चन, है ना. आत्मन्येव च तस्य कार्यम न विद्यते. जो आत्मा का अनुभव हो जाए, जो सब में आप अपने सब में दिखने लग जाए, उसके लिए फिर नैव तस्य कृतेन अर्थो, न एव तस्य कृतेन अर्थो. कुछ भी काम करने में कोई मतलब नहीं रहा फिर. ऐसे अर्थ का संस्कृत में अर्थ होता है वैल्यू, प्रॉफिट. उसको फिर किसी कोई भी कार्य करने में कोई प्रॉफिट नहीं दिखा देता. किस प्रॉफिट की दृष्टि से कोई कार्य नहीं करते. फिर अपनी प्राप्ति के लिए द विफम नहीं रह जाता. व्हाट्स इन इट फॉर मी, दैट डिजीज इज गॉन परमानेंटली, है ना. न एव तस्य कृतेन अर्थो. उसके लिए फिर कोई भी कार्य करने में प्रॉफिट के लिए, वैल्यू के लिए, पर्सनल गेन क्या कोई मतलब नहीं रहता. इसलिए फिर किया भी ठीक है, न किया भी ठीक है, लेकिन न अकृतेन, है ना. तस् नैव तस्य कृतेन अर्थो न अकृतेन च कश्चन. न करने में भी कुछ उसकी मोटिवेशन नहीं होता. ऐसा भी नहीं होता कि फिर देयरफॉर व्हाई डू एनीथिंग. मेरा पर्सनल कोई प्रॉफिट नहीं है तो फिर करे ही क्यों, है ना. लोग पूछते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते वो माँ फलेषु कदाचन. फल के लिए नहीं, फल की ओर देखने तो फिर करना ही क्यों है कार्य. सो न अकृतेन कश्चन. तो जो आत्मा ने, जिसकी आत्मा में रति हो जाती है, तो तस्य कार्यम न विद्यते. उसके लिए करने लिए कोई कुछ रहता नहीं है, जो सामने वो किया जाता है. So when we come to that, we will shed more light in it. But it is a beautiful way to live. It is the most beautiful way to live in the full consciousness of the truth. Why should you not have it? ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है कि तुम्हें न मिले ये? Why do you think you should not deserve it? भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा, भगवान ने तो उल्टा कहा है. Then why should you shortchange yourself? Why should you settle for so less in life?
वाई शुड यू सेटल फॉर समथिंग जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत कष्ट करने पड़े, उसके बाद ही मिलेगा, और जो मिलेगा वो पता नहीं ठीक अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, और अच्छा लगेगा तो भी टिकेगा या नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा इसलिए फिर से करना पड़ेगा। इस जीवन में ही केवल समाधान क्यों मान ले? मनुष्य जन्म हुआ, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस फॉर्म। This is the life form of the greatest possibility. This is the greatest form conceived and created and imagined. And right here, right now, we have it. So it's a matter of flipping the light switch on. It's a matter of resolving. It's a matter of determining that, yeah, I think I deserve it too. No one can tell me that I cannot. And I'll claim it. I will claim my heritage. I will claim my legacy. So, ऐसा निग्रह करे अगर गीता के अभ्यासक है तो। फिर हम तीसरे अध्याय की ओर चले थे, क्योंकि अर्जुन ने भी बड़ा ट्रिक करने का प्रयास किया, ट्राई टू फूल गॉड, क्योंकि ग्रेट ज्ञान दे दिया, तुमने ये कह दिया कि ज्ञान इज सुपेरियर टू नॉलेज। यू जस्ट टोल्ड मी माय लॉर्ड दैट व्हाटएवर वन मस्ट डू शुड बी विद द सोल पर्पस टू लर्न द लेसन फ्रॉम इट। Doing something just for the sake of doing is meaningless. That is for the animals. That is for the lower species that are pre-programmed to do as they are programmed to do. It is for this one species, मानव जन्म के लिए उद्देश्य is प्रमुख, purpose. भगवान ने जो मुख खोला बात करने के लिए. You all know this, have heard this, but you know I'm a mad dog. I'm going to keep bringing this back. पहला शब्द क्या था भगवान का? मुंह खोला तो कुतस्त्वा. Why? What is the purpose? And I keep telling you, reminding you that if God chose the purpose or the why as the first word to put in His Gita that He puts on His own head, Bhagavan says, then it must be a great indication for us that we must also internalize that. Why am I doing anything that I'm doing? What is my purpose? Why did I come here? It could not be that I came here just to ढोर गधे ढोर जैसे मेहनत करके कुछ कचरा पट्टी खा करके ये वो इधर उधर मुंह मार के चर के मर जाए, एक दिन ख़त्म हो जाए, पता ही नहीं चला कहाँ से आए और कहाँ गए और क्यों थे, बस धमाधम मज़ा किया। वो तो फिर सपना देख के बहुत हो गया। सपने में तो ऐसे ही करते हैं, कितना मस्त फर्स्ट क्लास सपना देख लेते हैं, एफर्टलेसली देख लेते हैं, कुछ जॉब पे भी नहीं जाना पड़ता सपने में। नहीं तो मूवी, बस मूवी देखते रहे, मूवी में भी ऐसे होता है। अगर इतना ही जीवन का पर्याय था तो ना सोच के देखिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करें। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस। भगवान कहते हैं बुद्धि युक्त बने, बुद्धि का उपयोग करें। इंटेलेक्चुअल है तो इंटेलिजेंस, बुद्धि मिली है तो उसका उपयोग करें इस पर विचार करने के लिए। सो तीसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा तो तूने तो अभी तो बता दिया साहब कि मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, सब समझा दिया, तो अब मेरे को काय को युद्ध करने के लिए जाने देना यार, तू लड़, तेरे को लड़ना है तो मैं चला। तो गॉड स्टॉप्स हिम, उसका कॉलर पकड़ के, नो 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 नॉट सो फास्ट, है ना। द थिंग इज यू डोंट लर्न विदाउट डूइंग, यू डोंट लर्न एज गुड विदाउट डूइंग एज गुड, यू डोंट लर्न perfectly without doing perfectly. So if you seek perfect knowledge, then you must execute flawlessly. So you can only execute flawlessly if your intentions are pure. So therefore you have to purify your inner vessel, your inner device. So pure intention and perfect execution, flawless execution. So focus around that, anchor around that. तो कर्म योग को अगर अपनाना है, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन एंड फ्लॉलेसनेस ऑफ एक्सिक्यूशन। फ्लॉलेसनेस कैन बी अचीव्ड, भगवान कहते हैं योग में, थ्रू मॉडरेशन, थ्रू रेगुलेशन। फ्लॉलेसनेस इज नॉट ए मिथ, बट इट इज़ नॉट ए आशीर्वाद कि भगवान कृपा करेंगे और परफेक्ट हो जाएगा, इनका स्पर्श हो जाएगा, इनके बत्ता से खा लेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा, इनके आरती इतने बार कह लेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। नहीं होगा अकॉर्डिंग टू गीता ना। मतलब होगा तो होगा, नहीं तो होगा, नहीं होगा ऐसा तो नहीं कहा भगवान ने, लेकिन आसानी से होगा। उससे होगा किससे? युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से कर्मसु, युक्त कर्म से चेष्टा से, युक्त इज मॉडरेशन,
Regulation, keeping the balance. In other words, you use the word balance, anchor on the word balance. Examine within. Am I keeping a balance through my daily ritual? My morning hours, my afternoon hours, my evening hours, my nighttime. How much do I sleep? How much do I stay awake? What do I see? How much do I indulge? How much do I talk? How much do I think? Read? What do I read? Think? How much do I eat? What is it? इसमें regulated हूँ क्या? Am I in control or am I being controlled? Do I use what I have moderately, in moderation? So again, purity of intention and moderation in execution is the way, will get us through. अगर प्योर इंटेंशन ना हो तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी. प्रारंभिक ही दो बोट, एक बंदर से, मराठी में बंदर कहते हैं पोर्ट को, शिपयार्ड, डॉक. दो बड़ी सी जहाजें चली, अभी तो वो बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस हो गए. कैन इमेजिन just 3 months ago in a big dock, two big ships together, and they start sailing out of the dock together, and 1 degree apart. एक थोड़ी सी इधर जाना शुरू होती है, एक थोड़ी सी इधर जाना शुरू होती है, and they keep going. But because of the progress that they continue to make, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं. नज़रें बदली तो नज़ारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले. अब जिसकी नज़र बदली तो क्या दिख रहा है वो भी बदला. In the eyes of the beholder, two people looking at the same thing, but thinking very different thoughts. किश्ती मतलब नाव ने बदला रुख, थोड़ी दिशा बदल ली तो किनारे बदले. एक कहाँ अटक गई, कहाँ हवाई में सुंदर दृश्य देख रहे, दूसरी कहाँ पर डिजीज्ड कोस्ट पे चली गई. तो watch for that. Purity of intention is very important. Keeping the integrity of the purpose is very critical. Now, I'm not going to launch the 8th chapter until we tighten the bolts again, or this is a stop. We stopped at the rest area. We must kick the tires to see if there is enough before we put the gear back in. कि हवा ठीक ठाक है, तेल पानी है गाड़ी में या नहीं. That's what we are doing today. So, इसलिए purity of intention, examine that, go within and see जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें मेरा selfishness है क्या? Am I carrying a limited perspective? मैं इतना ही चश्मा पहन रहा हूँ कि जिससे खाली अपना ही दिखाई दे, और am I उस चश्मे को फेंक दे रहा हूँ हमेशा के लिए, क्रश करके broad vision. यज्ञयाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते. अभी इसी अध्याय में, तीसरे अध्याय जो चल रहा था उसमें आता है, यज्ञ की भावना से जो कर्म करेगा उसको फिर वो बांधेगा नहीं, कर्म बंधन नहीं होगा. हम लोग जो सभी कहते हैं मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए. मुक्ति किसको चाहिए? जो बंधा हो उसके लिए. जो खुला हो उसको कहे कि मुक्ति चाहिए. बंधा हो तभी तो मुक्ति चाहिए. तो बंधा किसने है? किसी ने नहीं बांधा, हमने अपने आप को बांध लिया. मैंने कितने बार कहा था, फोन को मैंने पकड़ा या मैंने फ़ोन को पकड़ा, इसको छोड़ दो या छूट गया. ऐसे ही बंधन मैंने बांध के रखा है, किसी दूसरे ने आकर के कहाँ बांध के रखा है? अपने कर्मों के फल का बंधन है. फल संस्कार रूप में हमें बांध रहे हैं, संस्कार की रस्सियाँ. हमारी इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारे विचार उसके अनुसार हो गए, जैसे जैसे हमारे इंटेंशन थे, जिस इंटेंशन से कर्म किए. तो सेल्फिश है या सेल्फलेस है. So it is just like those two ships really needed to be careful, very watchful and guarded of the initial direction before they set sail. Not lackadaisical, not ignoring, not careless कि ठीक है ना यार, इतना सा तो फर्क है, इधर ही, दोनों भी तो उधर ही जा रहे हैं, निकल पड़े अभी. भैया, if you're not watchful and if you keep going in that direction, you're going to end up someplace very else. कहीं कोई दूसरे नज़ारा दिखाई देगा. You might see a rotten shore that stinks when you were hoping to get to paradise, that ship. And so watch, be careful. Watch किस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं. That intention, inside कौन सा द्वंद्व चल रहा है, intention, right? द्वंद्व कौन सा चल रहा है? द्वंद्वातीतो, ये शब्द सारे के सारे भगवद गीता में आते हैं. द्वंद्व रहित होना है. द्वंद्वों से द्वंद्व विमुर्मुक्ता, तेषा द्वंद्व विमुर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता. अभी इसके पहले 7वें अध्याय में किया था, भूले नहीं. 7वें अध्याय के अंत में जो कहा था.
तो जो द्वंद्व है, टेंशन जो है, जो इनसाइड चल रहा है, इन टेंशन जो है, उसको वॉच करे. दैट इज वेयर द कैलामिटी, द रियल डिजास्टर इज. और वो विजिबल नहीं है. विजिबल नहीं है इसलिए एग्जिस्ट नहीं होता, ऐसी बात नहीं है. वायरस कहाँ विजिबल है ना. तो इट इज रियली क्रिटिकल टू वॉच द इनिशियल इंटेंशन. सो प्योरिटी, सात्विकता, गुडनेस, selflessness is critical, it's crucial. Purity of intention and then moderation and execution. सहज जीवन जिए उसके बाद. If you're convinced that your intention is pure, उसके बाद छुट्टी के लिए ज़्यादा समय नहीं. First class बिंदास. That's what we say, right? फिर करे जितना जमती. I do my best, guys. These sessions might suck for most of you. I mean, I think they kind of do for some of you. But hey, I am guilt-free. I'm giving it my best. My best is so mediocre, could be so inferior, and could be nothing. है ना. मेरे को खा के चने बेच जाए, ऐसे लोग तो इतने बड़े संत है कि ये लो इसको बेचा, अठन्नी दे दी, इसके चना चोर खा के खा लिया जीतू भाई को बेच के. इतनी मेरी औकात है, ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह से. But guys, guess what? This is my best. इसलिए मैं बिंदास हूँ और इसमें स्वार्थ नहीं है. So once the intention is pure, फिर सहज जीवन जिया जा सकता है. The best, the most beautiful way to live is a guilt-free, regret-free lived life. The one that carries no guilt in the chest, that I've meant no harm. गलती तो होती है, पग पे गलती होती है, मानव शरीर में है. तो this is fraught. It is nothing but flawed form, है ना. लेकिन अब इंटेंशन को प्योर रखे तो गिल्ट फ्री सुंदर जीवन हो सकता है, बिल्कुल. बट इट देन डज बिकम इम्पोर्टेंट टू एग्जामिन विद इन, अंदर के लिए. तो दैट इज वेयर द थर्ड चैप्टर हैड टेकन अस. दैट वी कैन, देयर इज नॉट अ मोमेंट इन लाइफ दैट वी कैन से आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू डू इट. Not doing anything is also doing something. Not making a choice is a choice in itself, right? I don't know means you at least know something that you don't know. So it is impossible to get rid of the need to do something. They might as well do that which aligns with my primary purpose. अगर करना ही है तो जो बैलेंस्ड जीवन बना के, रेगुलेटेड मॉडरेशन में रह करके सहज जीवन बनाए, फर्स्ट क्लास जीवन बनाए, मस्त बिंदास्त हो जाए, कोई चिंता ना करे, चिंता रहित हो जाए, है ना. ऐसा जीवन जीना संभव है और ऐसा ही जीवन जीने योग्य है. ऐसा ही जीवन जीना चाहिए. ऐसा जीवन बिल्कुल जी सकते हैं. तो हर एवरी ह्यूमन. कुत्ते बिल्ली ने तो मैनेज कर लेते, फिगर्ड आउट. कहते कुत्ते ने फिगर, काना वाज टेलिंग मी फ्रॉम सम पॉपुलर साइंस मैगजीन दैट वी वर अंडर द मिथ दैट ह्यूमंस domesticated dogs. Now research shows that dogs domesticated humans. They figured out कैसे इनके घर में घुस के सोफे पे जाके बैठे और बस ऑर्डर दे और ये आके अपना टट्टी साफ करे और खाए पिए. वो तो उन्होंने फिगर आउट कर लिया, बिंदास कैसे जिए, फर्स्ट क्लास कैसे जिए. अभी हम भी वो फिगर आउट कर लें. तो सहज जो जीवन जिएगा, many of you will remember power of the word सह अज. सहज, ज जन्मवाचक, अज is ajanma, God, the one who was never born. Why? Because he always existed. The one who is born always dies, he never dies. Existence always exists. Sat, Chit, Ananda, the Sat in the Satchidananda. Existence was always there. Sah, with, accompanying him, Sahaj Jivan. If I am conscious, if I am aware, back to this 7th shlok, Mam Anusmara Yuddhacha. If I am aware, if I am conscious, that I am always living with him, he or she or it, whichever form. For me, it my Sakha, this one behind me, if you can see, this one. For you, it may be some other form. Koi wanda nahi, koi problem nahi. Pick your form. Pick your name. It's the same one. है ना. वो हमेशा मेरे साथ है तो फिर चिंता क्या है, राइट. सो सहज जीवन हो. लेकिन वो अगर साथ में तो वो देख भी रहा है, साक्षी गोपाल है, वो साक्षी ज्यों का त्यों, द विटनेस, द अनचेंजिंग, इम्यूटेबल, इंडोमिटेबल
उसके आंख पर पट्टी नहीं बांध सकते, क्योंकि वो वही अपने अंदर में बैठ के चला रहा है, देख रहा है. नो वे टू फूल गॉड, है ना. नो वे टू फूल द विटनेस, टू ब्लाइंड फॉर द विटनेस. इस भावना से जो करे. सो दैट्स वेयर वी एंटेड द थर्ड चैप्टर. फिर उसके बाद कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, चौथा और पांचवा अध्याय. फिनोमिनल, just awesome chapter. You must indulge, you must take dips within it. एक से एक श्लोक उसमें. इहैव तैर्जितः सर्गे येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः. बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विजितात्मा, है ना. ऐसे इतने तोहफे खोले थे कि उसने इसी क्षण, इसी बार, मैंने 2 सेशंस आगे उसकी याद दिलाई थी. अभी संसार को जीत लिया जिसने अपने मन को जीत लिया. इह एव, अभी यहीं, तैर जितः सर्गे, उसने जीत लिया जो भी बनाया था आज तक क्रिएशन. दैट वन हैज कॉन्कर्ड द एंटायर क्रिएशन ऑफ ऑल टाइम्स, राइट नाउ, राइट हियर. इहैव तैर जितः सर्गे येषां साम्ये स्थितं मनः, the one who is content in the way things are, the one who is satisfied, the one who lives in the respite of the quietude. समता में जो स्थित है, जो देख पाता है कि सब ठीक है, कोई बुराई के लिए स्थान ही नहीं है, तो जिसको एब्सोल्यूट विजन प्राप्त हो गया. रिलेटिविटी में जो उछल कूद नहीं चल रहा है, जो कंपैरिजन में अच्छा बुरा द्वंद्व, हीट एंड कोल्ड, ब्लैक एंड वाइट, गुड एंड बैड, मैं और मेरा, मामका पांडवाश्चैव, पहला अध्याय, मेरे वाले पांडु वाले, ऑल दैट इज द रिलेटिव. बट जो एप्स इसके छलांग मार के एक बार अपना पुरुषार्थ करके, पुरुष अर्थ, रिमेंबर, आई मीन वेयर दिस इज अनस्टॉपेबल, अर्थ, प्रॉफिट, वैल्यू, पुरुष अगर बने हैं तो उसका मतलब क्या. व्हाट डू यू वांट टू, व्हाट इज द बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस लाइफ टाइम. इसके ऊपर चले जाए, इस गुणों के आगे निकल जाए. जो गुणों ने कंपैरिजन में जो बांध के रखा है, इससे छलांग मार के, बहादुरी करके, स्वभावो विजयते शौर्यम. श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण का आखिरी दिन, आखिरी घंटा, उसके जीवन का लास्ट आवर ऑफ हिज अवतार, एक बचा उसके साथ उद्धव, है ना. उसके पैर में बाण लग के चला गया था कृष्ण के रूप की मृत्यु कैसे हुई, पैर में बाण लगा, प्रोफ्यूजली ब्लड टू डेथ. कैन यू बिलीव दैट. तो उसने उपकार, अपना कर्जा फिटाया, कर्म का फिटा था, जो है ना, वो उस वाली का, जो वाली को राम अवतार में बाण मार के जो मारा था, उसको कहा था कि तेरा बदला लेने का सब मौका मिलेगा, तू भी आएगा, मेरे को ऐसा ही बाण मारेगा, छुप के ही मारेगा, और उससे मैं मर जाऊंगा जैसे तू मर रहा है. तो उस समय उद्धव ने जो अपने साथ रखा था आखिरी दम तक, अलग कितने कितने प्रश्न किए. उद्धव गीता क्या है, मेनी 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 क्वेश्चंस फ्रॉम उद्धव. द वन हु कॉल्स हिम द बेस्ट, माय बेस्ट डिवोटी. उद्धव को सर्टिफिकेट किया, आखिरी फाइनल सर्टिफिकेशन उद्धव बैग्ड इट. ही सेड यू आर माय मोस्ट बिलवेड, माय बेस्ट डिवोटी, नॉट अर्जुन, contrary to what you might think. उसने जो प्रश्न किए, उसमें से उसने एक प्रश्न किया था कि सबसे वीर कौन है, सबसे शौर्यवान कौन है, who is the greatest, who is the bravest of all. तो कृष्ण कहते स्वभावो विजयते शौर्यम, the one who has conquered his mind, the one who can control his mind, the one who is no longer in the control of the propensities, the natural tendency, जिधर भगा लिया, जो उधर नहीं, जो अपने घोड़े की लगाम पकड़ी, अपने मन के पूंछ पकड़ के लथड़ा नहीं जा रहा इधर उधर, not bleeding to death because being dragged by the wild, unrestrained, wild horse of his mind, but the one who's managed to climb. Yoga Arudha Saduchyate, Chhatha Adhyay, 6th chapter. It comes there in the beginning. उस योग के घोड़े पर आरूढ़ हो गया वो बलवान, और फिर लगाम पकड़ के उसको अपन जिधर चाहे उधर ले जा रहा है, अपने डेस्टिनेशन की ओर. वो ब्रेव है, कहते नॉट द वन who wins these battles or who amasses untold wealth, none of those, है ना. तो ये संभव है अपने लिए, वेल्थ अमास करना संभव नहीं है अभी, सारे बैटल्स जीतना संभव नहीं है, वायरस को भी जीतना शायद संभव नहीं है, लेकिन अपने आप को जीतना संभव है, सबसे बड़ा हो पाना संभव है. थोड़ा अंदर जाए, थोड़ा प्रकाश लाए तो बिल्कुल हो सकता है. इसके बाद वाला जो श्लोक है,
अभ्यास योग, ये 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, ब्राइट ब्रिलियंट श्लोक। अभ्यास योग युक्तेन, हम लोग 8 चैप्टर में है ना, चेतना न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम यान्ति पार्थ अनुचिंते ना, इसमें जो या सो अभ्यास योग से, बाय प्रैक्टिसिंग दिस, अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अभ्यास करते करते, अभ्यास योग से युक्त, what practicing what, again and again going towards God. What does that mean? अपना माथा फोड़ ले, नारियल फोड़े, अगरबत्ती लगाए, आरती करे, मंजीरा कूटे, नहीं, यूनिटी कॉन्शियसनेस, ब्राह्मी चेतना का अभ्यास। Again and again forcing ourselves to be able to see the vision in which all seem to be the same, one and the same, in Him and Him in all and the same. येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयना पापम विमुह्यति, दूसरे अध्याय का आखिरी श्लोक था। ऐसी ब्राह्मी स्थिति होती है अर्जुन, फिर वो मोह को प्राप्त नहीं होता। Then that person never goes back to this illusion that causes delusion, forgetfulness. फिर उसको कंफ्यूजन नहीं होता कि ये मैं है और ये मेरा है, फिर इतना ही दिखाई देता है हम सब एक है ना। सो इसका अभ्यास करें जिस किसी, और अभ्यास करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, जैसे फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर मोशन। डू यू गाइस नो दैट द लॉ ऑफ फिजिक्स, देयर वुड बी नो मोशन इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन। हम इतना एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते थे अगर फ्रिक्शन, संघर्ष। दिस इज अ फिजिकल लॉ, दिस इज अ साइंटिफिक लॉ, द ट्रूथ। एक इतना हाथ नहीं हिला सकते थे अगर फ्रिक्शन नाम का लॉ, संघर्ष न होता जीवन में, तो मूवमेंट भी नहीं, मोशन भी नहीं होती थी। कर्म नहीं हो करेंगे तो ज्ञान भी नहीं होगा। तो अभ्यास इसका करना है तो कैसे करे, खाली बैठ के पता नहीं चलेगा इसका क्या मतलब है। भगवान है, सब में एक है, एक में सब में, करके देखे तो पता चले, है ना। आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, रिमेंबर कन्फ्यूशियस, आई हियर एंड आई फॉरगेट। The greatest China, arguably the Chinese philosopher, right? I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. So do you must. God will goad us. You cannot run from this battlefield of life. Stay put, fight it, without worrying whether you will win or lose, without the outcomes of it. There are a whole bunch of things that are beyond your control. You are a tiny fraction of those that will determine the outcome. ये भी मैंने एक बार कहा था 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग में ये बात आती है ना, 5 बातों से जो मिलते हैं, अधिष्ठान, कर्ता, कारण, चेष्टा और दैव, ये 5 बातें मिल करके। तो कर्ता तो इट्स वन ऑफ द 5 only, so outcome is not in our control. The point of doing or performing our task was never to control the outcome or never to hope for the outcome. It was always only to learn the lesson by executing that task. Executing how? In moderation, with purity of intention. Right? I am recording this, by the way, and I will send this recording along. Also, I realized that I am going really fast and covering a lot of ground real fast. So, because I'm like a madman, throwing all my wealth away all around. And so it's hard to gather those. That is because आज परशुराम अवतार है, ये हमारे खुल के स्रोत है परशुराम जी। I'm energized, I'm excited. And I have all you in front of me. So अभ्यास योग, अभ्यास किस बात का करें? गणित का नहीं और किसी बात का नहीं, इस बात का कि ब्राह्मी चेतना को प्राप्त करने का, उसके द्वारा योग करने का, मिलन होने का, welded together, joined together inseparably from that feeling, from that experience, from that emotion of oneness, becoming inseparable with it. Chetasa na anyagamina. Chetana, my consciousness with which I am able to understand anything or think anything. Na anyagamina. Idhar udhar na bhatakne de. Undistracted. Gamina is jana, either anya is different places, na anya. So keeping it fixated, one-pointed, eka agra chitta, ekagra chitta, है ना? So agarwal banke, agra is pointed, the first ones,
top prioritizing that, giving my best time, my best energy, my best self for that reflection, for that contemplation. So अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, चेतना शक्ति, इसको अगर समझ ले, what does this mean? चेतना, it is the vital force, it is the life force with which we are alive, because of which, due to which we are alive, which is what gives energy to any of all of our organs, without which we will be able to perform nothing, understand nothing, see nothing, hear nothing, meaning dead. Yeah. So that is Chetana, the ability, the human ability to comprehend. So this Vedanta will inform us and then that you are that, tat tvam asi. ये सारी बातें 8वां अध्याय, by the way, I told you this is the most technical in nature. है ना? It is the essence. This is the entire Gita is from Upanishad. And God personally picked and chose from the Upanishads, which came from Ved, which came from himself, God. लेकिन particularly छांदोग्य उपनिषद नाम का एक उपनिषद है और बृहदारण्यक नाम का उपनिषद है ना? 100 से ज़्यादा, 108, 200 तो known उपनिषद है, 200 more, 108 are more commonly known, 18 are prominent. 2 that appear with greatest significance in the 8th chapter here are Brihadaranyaka. Brihad is big. Brihad means. ना? और छांदोग्य उपनिषद, ये 2 में से लेकर के बना हुआ ये 8वां चैप्टर है, अक्षर ब्रह्म योग. तो उन उपनिषदों में महावाक्य आता है तत्त्वमसि, यू आर दैट. और रियलाइजेशन के बाद साधक कहता है कि इंडीड अहम ब्रह्मास्मि, यस आई एम दैट. ना, चेतना मात्र है, प्रकाश मात्र है. उस सूर्य किरण को जो कहे, यार तो किस में फंस गया था, रोते पड़ रहा था कि हाउ इज इट, जेलस हो गया था कि यार मैं तो कीचड़ हूँ और ये तो निर्मल जल है, इसको तो इतना, ये तो सोना है और मैं मिट्टी का ढेला हूँ. बुद्ध ऐसा नहीं है. तू और वो दोनों सूर्य प्रकाश है. वो सोने पर पड़ गया और तू मिट्टी पर पड़ गया, और भूल ऐसी हो गई कि तूने अपने आप को मिट्टी का ढेला मान लिया, और उसकी भूल ऐसी हो गई कि वो बड़ा छाती ठोक के कह रहा है मैं सोना हूँ. न वो सोना है न तू ढेला है, तुम दोनों प्रकाश, दोनों उससे कई ज़्यादा कीमती, इनकॉम्परेबली प्रेशियस. तुम तो चेतना, तुम न होते तो न सोना दिखाई देता न ढेला दिखाई देता. दोनों की कीमत एक है जैसी, दोनों का अस्तित्व तक नहीं था. दिखाई न दे तो उसकी क्या कीमत है, पता ही न चले कुछ है एग्जिस्टेंस. इट इज़ बिकॉज यू एग्जिस्ट दैट दे आर एबल टू सी द गोल एंड. तो ऐसा तो जो 4था और 5वां अध्याय कहा था मैंने, धुरंधर, उनमें ये बातें आती है ना. वो पंडित की परिभाषा जब करते हैं, जिसके लिए मिट्टी, सोना, पत्थर, हाथी, चांडाल सब एक जैसे है, ये भगवद गीता में आता है. तो अपनी चेतना को आइडेंटिफाइंग विथ द चेतना, राइट नाउ व्हाट इज द बिगेस्ट and the only problem today with us that we have misidentified with the मिट्टी का ढेला, और अपने आप को कोस रहे, छोटा समझ रहे, कमज़ोर समझ रहे, इन्फीरियर समझ रहे, अथवा अपने आप को सोने का लोटा समझ रहे तो बहुत बड़ा समझ रहे, और दोनों से ऊपर. और तो फिर सोना भी बिगड़ जाएगा और मिट्टी भी बिगड़ जाएगी, मर भी जाए, दोनों मरेंगे किसी दिन. लेकिन अपने आप को चेतना, जो प्रकाश था, जो प्रकाश, उसको भुला दिया, है ना. एंड द प्रकाश इज एवर कनेक्टेड विद द सन, द रे ऑफ सन इज ऑलवेज कनेक्टेड. दिस सिंपल कॉमन सेंस, द रे ऑफ लाइट, यू कैन ट्रेस इट बैक टू द सन इटसेल्फ. एवरी जीवात्मा इज एवर कनेक्टेड विद परमात्मा. टुडे, राइट नाउ, राइट हियर, यू एंड आई आर एवर सो कनेक्टेड विद आवर सोर्स. चैतन्य के साथ जुड़ी हुई जो चेतना है, वो मैं हूँ, वो तुम हो. ये ज्ञान, इसको बार बार इसका कॉन्टेम्पलेट करता हुआ, तो फिर मैं किस में फंस गया यार, जेलसी में फंस गया कि ये तो बड़ा ढेला है, मिट्टी का ही ढेला ये भी, लेकिन ये बड़ा ढेला है, मैं छोटा ढेला हूँ. तो मैं इसकी निंदा करने लग गया. इसकी तो ज़्यादा, ये तो ढेले में कीड़े भी पड़े हैं, मैं तो कम से कम स्वच्छ, ये मेरे मिट्टी के ढेले में कीड़े नहीं है, इसमें तो कीड़े भी है. निंदा भी करने लग गया, जलन भी हो गई, जेलसी, चोरी चौपटी करने लग गया, स्टीलिंग द थंडर फ्रॉम अदर्स, ग्लोरी फ्रॉम अदर्स. करे ये तो सोना है, वरना कुछ नहीं, इसके ऊपर मिट्टी थोड़ी फेंक दे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा. ये क्या हो गया?
चेतना थी, मात्र थी, सबको प्रकाशित करने की शक्ति थी, भगवान से आई थी, भगवान ही थी। और किस में फंसा दे? ईर्ष्या में, जलन में, क्रोध में। ये बड़ा हो गया अपने से तो क्रोध हो गया, छोटे हो